Hello friends, welcome to ABHI LAW where law is simplified. This is your Professor Dr. Amrish R. Patnagiri, and in our lecture series of the Probation of Offenders Act 1958, we have completed till section 12 in the previous video. Now in this video we are going to start from 13 till 19. Remember, section 13 of this act talks about probationary officer. Who can be probationary officer? Who can be appointed as a probationary officer? Subsection 1 says, a person appointed to be a probationary officer by the state government or recognized as such by the state government. Okay. Subsection B says, a person provided for this purpose by a society which is recognized by the state government, that person can also become a probationary officer. C, in exceptional case, any other person who is in the opinion of the court is fit to act as a probationary officer. Means even the dad of the offender can become a probationary officer and a supervisor. Even the mother can become a. Now subsection 2 says of section 13, a court which passes an order under section 4 or the district magistrate of the district in which the offender for time being resides may at any time appoint a probationary officer in the place of the person named in the supervision order. Who will appoint the probationary officer? The court which passes the order. Basically, the probationary officer shall be from that place where the offender resides. Okay. Now, subsection 3 talks about a probation officer will exercise his duty and will be subject under the control of the district magistrate of that district where the offender resides. Now let's see what are the duties of the probationary officer. Probationary officer के duty क्या है? A probationary officers are subject to such condition and restriction as may be prescribed. क्या क्या करेगा probationary officer? A, inquire in accordance with the direction of the court into circumstances or home surroundings of any person who is accused of an offence with a view to assist the court in determining the most suitable method of dealing with him and submit the report. Inquire करेगा, उसके घर के बारे में इंक्वायर करेगा, उसका सराउंडिंग के बारे में इंक्वायर करेगा, जो कोई पर्सन जो एक्यूज हुआ है, जो ऑफेंडर है, उसके बारे में, और कोर्ट को हेल्प करेगा ताकि कोर्ट डिसीजन पर ले सके कि कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, कौन सा मेथड यूज करना चाहिए. बी, सुपरवाइज प्रोबेशनर्स and other person placed under his supervision and where necessary endure to find them a suitable employment. मतलब जो ऑफेंडर है उसको जॉब भी वो दिला सकता है, ये भी उसका काम है, उसको पूरा सुपरविजन उसका काम है प्रोबेशनरी ऑफिसर का. एडवाइज एंड असिस्ट ऑफेंडर इन द पेमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन ऑफ द कोर्ट और द कॉस्ट ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट. ओके, ये थर्ड हो गया. लास्ट वाला, एडवाइज एंड असिस्ट इन सच केस and in such manner as may be prescribed person who have been released under section 4 and E perform such other duties as may be prescribed. आइए हम सेक्शन 15 को देखते हैं. प्रोबेशनरी ऑफिसर टू बी अ पब्लिक सर्वेंट. जो भी प्रोबेशनरी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा वो अंडर सेक्शन 21 ऑफ इंडियन पिनल कोड ही विल बी कॉल्ड एज ए पब्लिक सर्वेंट. याद रखना है. 16, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ. जो कुछ प्रोबेशनरी ऑफिसर ने एक्शन लिया है, इट विल बी डन इन गुड फेथ. गुड फेथ कहां पर लिखा है? सेक्शन 52 ऑफ इंडियन पिनल कोड. थिंग्स डन विद ड्यू केयर एंड प्रिकॉशन इज गुड फेथ. आइए हम 17 को देखते हैं. रूल्स, गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अंडर दिस एक्ट. सो दिस इज द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, नोटिफिकेशन से वो क्या करेगा? रूल्स बनाएगा. इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू जनरलिटी एंड फोरगोइंग पावर्स सच रूल में प्रोवाइड फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर. कौन से मैटर में रूल्स बनेंगे? अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसकी सर्विस कंडीशंस पर, टर्म्स कंडीशन पर, और उसका जो ज्यूरिडिक्शन है उसके ऊपर, ड्यूटीज के ऊपर बनाए गए रूल्स बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट. कंडीशन ऑन विच सोसाइटीज में बी रिकॉग्नाइज्ड अंडर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13. D, payment of remuneration and expenses of probationary officer, subsidy to any society which provides probationary officer, any other matter which is to be or may be prescribed. Subsection 3 क्या कहता है? All rules made under this section shall be subject to the conditions of previous publication and shall as soon as may be after they are made be laid before the state legislature. ओके, जो रूल्स बनाए जाएंगे पब्लिकेशन करना, स्टेट गवर्नमेंट के सामने लाना, स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उसको पास करके लेना.
Okay, now 18 and 19 are the two sections which are non applicability section. ये एक्ट जो है कहां पर अप्लाई नहीं होगा? सेक्शन 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और एनी अदर लॉ इन फोर्स. ओके, तो ये एक्ट इन बातों पर लागू नहीं होगा. 31 ऑफ रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट 1897, सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 5 ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और एनी अदर लॉ. ओके, और 19 क्या है? सेक्शन 562 ऑफ द कोड नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस. 562 कोड क्या है? न्यू सीआरपीसी का ये सेक्शन है 360. सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 18, सेक्शन 562 मतलब सेक्शन 360 ऑफ द कोड शैल सीज टू अप्लाई टू द स्टेट्स और पार्ट्स देयरऑफ इन विच दिस एक्ट इज ब्रॉट इनटू फोर्स. मतलब 360 का जो सेक्शन है, जो सीआरपीसी का कोड है, वो इस पर लागू नहीं होगा. सो दिस ये एक्ट उस पर लागू नहीं होगा. दैट इज व्हाट द एप्लीकेबिलिटी टॉक्स अबाउट. तो मुझे लगता है कि मैंने पूरे सेक्शन 19 आपको इस एक्ट के कवर करके दिखाया. आइए इस एक्ट को हम ब्रीफ कर लेते हैं. ये एक्ट एनफोर्स हो गया 16 मई 1958 को. ये पूरे इंडिया में लागू है और अलग अलग स्टेट उसको नोटिफाई करते हैं अपने अपने स्टेट्स में. उसके बाद वो जो डेफिनेशन पार्ट है, इसमें सिर्फ 4 डेफिनेशन है. एक तो कोड का डेफिनेशन है जो सीआरपीसी है, दूसरा वो प्रिस्क्राइब्ड का डेफिनेशन है, और तीसरा जो है जो कुछ डेफिनेशन इसमें नहीं है वो सीआरपीसी के डेफिनेशन को लाया जाएगा. और एक डेफिनेशन है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर का है. तो ये 4 डेफिनेशन हो गए. सेक्शन 3, 4, 5 जो था वो कोर्ट के पावर्स थे. 6वां था रिस्ट्रिक्शन जो कोर्ट के ऊपर है. 7वां था जो प्रोबेशनरी ऑफिसर ने जो रिपोर्ट दिया उसको कॉन्फिडेंशियल रखना. जो 8वां सेक्शन है वो सेक्शन था जो वेरिएशन ला सकता है. और जो 9, 10 और 11 एंड 12 वो अपील का सेक्शन था, रिवीजन का सेक्शन था, और प्रोबेशनल ऑफिसर को अपॉइंट करने का सेक्शन है, उसकी ड्यूटीज है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. और 18 और 19 जो सेक्शन है वो नॉन एप्लीकेबिलिटी से सेक्शन है. मुझे लगता है कि मैंने आपको पूरा प्रोबेशनरी ऑफेंडर एक्ट 1958 आपको एक्सप्लेन किया है. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करने मेरे चैनल को ना भूलना. आपका सब्सक्रिप्शन हमारा मोटिवेशन है. याद रखना, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स abhilaw@gmail.com पर भेजना ना भूलना. अगर आप चाहते हैं कि मैं और कोई दूसरा एक्ट एक्सप्लेन करूं तो उस एक्ट का नाम मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजना. अगली बार मैं उस वीडियो को लेकर आऊंगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.